अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8B को सॉल्व करेंगे, जो कि इस टॉपिक पर बेस करती है फैक्टराइजेशन ऑफ या फैक्टर्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 है p स्क्वायर q प्लस p q स्क्वायर। अब p स्क्वायर है, इट्स मीन p इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम, सो p स्क्वायर इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाय p। अब इसके लिए p डॉट p का एक्सप्रेशन भी ठीक है और p मल्टीप्लाई बाय p, लेकिन मोस्टली ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है p डॉट p। इन दिस डॉट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्ट। सो p स्क्वायर, सबसे पहले p स्क्वायर q क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब p स्क्वायर है तो राइट p डॉट p मल्टीप्लाइड q प्लस p q स्क्वायर को भी इसी तरह ब्रेक कर लेंगे, q डॉट q मल्टीप्लाइड बाय q। अब देखिए इस पर जो फैक्टर्स हैं p मल्टीप्लाइड बाय q इन फर्स्ट टर्म, p मल्टीप्लाइड बाय q इन सेकेंड टर्म। सो इसको कॉमन ले लेंगे, p मल्टीप्लाइड बाय q, सो रिमेनिंग टर्म आर p इन फर्स्ट टर्म प्लस q इन सेकेंड टर्म। सो इसी का सेकेंड क्वेश्चन है 3x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर वाई। अब 15 को फैक्टर्स में लिखें तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो पहली टर्म हमारी क्या है 3x क्यूब, मीन x इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, माइनस 15 मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, x स्क्वायर मीन x इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय y। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कॉमन टर्म्स निकालेंगे। 3 इज कॉमन इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, x मल्टीप्लाइड बाय x, 2 टाइम्स x इज कॉमन, सो कॉमन चीज़ों को बाय लिख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, x इज कॉमन, x रिमेनिंग फैक्टर इन द फर्स्ट टर्म एंड 5 इन सेकेंड टर्म एंड आल्सो y। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x मल्टीप्लाइड बाय x मीन x स्क्वायर 3x स्क्वायर इंटू x माइनस 5y। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3, 45y raised to power 4 minus 9xy cube। 45, write the 45 in the factors of 9। so 45 is 9 या 5 9s are 45, so 5 multiplied by 9 or y is to power 4, it's mean y is multiplied 4 times, y multiplied by y 4 times, minus 9 x y cube mean y is multiplied 3 times, so we can use the same symbol for product. We can also write this 5 multiplied by 9 y multiplied by y 4 times, minus 9 multiplied by x multiplied by y 3 times. So we can use both symbols are correct, product are dots. So अब इसमें कॉमन फैक्टर चेक करें, 9 is common in both terms, so write 9. How many times y is common? 3 times, so multiply by y 3 times. The remaining factors are 5 y minus, then second term x. So now combine y multiplied by y is multiplied 3 times, so it is 9y is to power 3 5y minus x. Question number 4, 6 p square q plus 12 p q square. Now 6 p square mean p is multiplied 2 times, q as it is, plus now write the 12 in the factors of 6. 2 6 are 12
So 2 multiplied by 6, multiply p is 1 time p, q square mean q is multiplied 2 times. Now check the common factor, common terms are common factors. 6 is common in both terms. Now p in the first term, p in the second term. So write p, 6 multiplied by p. Now find the second term, which is q. Q is in first term, q is second term. Now the remaining terms are p in the first term plus 2 in the second term plus q in the second term. So this is the required answer. Or we can also write this as 6pq into p plus 2q. Question number 5. 5 a raised to power 4 b square plus 15 a square b raised to power 4. So first of all, we can write 5 a raised to power 4 mean multiplied a 4 times, 3 times a 4 times, b square mean multiply b 2 times, plus 15. Write the 15 in the factors of 5. So it can be written as 3 multiplied by 5. And a square can be written as a multiplied by a. And b raised to power 4 can be written as b multiplied 4 times. Now check the common terms. 5 is common in both. So we can take common 5. A square, a 2 time in first term, a 2 time in second term. So the next, b multiplied by b, b multiplied by b. So we take common b multiplied by b. The remaining terms are a multiplied by a in the first term, and in the second term that is 3, and the remaining term is b multiplied by b. Now we can write it as a multiplied by a 2 times, so it can be write as a square. B multiplied 2 times, it can be written as b square. A is multiplied 2 times, so it is a square, plus 3. B is multiplied 2 times, so it is 3b square. So question number 6, xy plus x plus y plus 1. So we arrange the term. First we write the question same, xy plus x plus y plus 1. Now in the first two terms we notice x is multiplied with x and the second term is x. Now we can take the common term x in the first factor, x in the second. So we take the common x into the remaining term is y, and in the next term it is x is common, x multiplied with 1, so we can write y plus 1 plus, इन दोनों टर्म्स में देखा जाए द नेक्स्ट टर्म इज y प्लस 1. अगर हम इसमें से 1 कॉमन ले लें, 1 तो सब फैक्टर्स में कॉमन होता है, सो दैट इज y प्लस 1. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. अब देखिए ये दोनों फैक्टर्स कॉमन हैं, तो x y प्लस 1 कॉमन आ गया. पहली टर्म में भी है, दूसरी टर्म में भी है, इसको एक दफ़ा से लिख लिया y प्लस 1. तो रिमेनिंग टर्म पहले में y प्लस 1 कॉमन रह जाएगा, तो पीछे कौन सी टर्म रह जाएगी, x. दूसरी में से भी प्लस 1. सो इसके दो फैक्टर्स बन गए, y प्लस 1 एंड मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 1. सो क्वेश्चन नंबर 7 में पहले हम टर्म्स को अरेंज कर लेंगे. a मल्टीप्लाइड बाय m क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं m इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स r, m स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड विद m. दोनों पावर्स ऐड हो गया, अगेन क्या हो जाएंगी, m क्यूब माइनस a m स्क्वायर माइनस m मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद 1
1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 1 ही आएगा। सो अब देखिए ए एम स्क्वायर पहली टर्म में भी है, ए मल्टीप्लाइड विद एम स्क्वायर सेकेंड टर्म में भी है। एक स्टेप में इसको कॉमन ले लेते हैं, ए मल्टीप्लाइड विद एम स्क्वायर, तो फैक्टर कौन सी टर्म रह जाएगी, एम माइनस, अब इसमें से ये पूरी टर्म कॉमन रहेगी तो पीछे क्या रह गया 1, एम माइनस 1। अब इसमें देखें दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है 1, सो वी कैन टेक द कॉमन -1। अगर -1 कॉमन लेंगे, इसमें से -1 कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया m। जब देखिए इसमें +1 है तो +1 कैसे बनता है, -1 मल्टीप्लाइड विद -1, सो वी गेट 1। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है 1, सो इट बिकम -1, एक -1 कॉमन रह गया और एक रिमेनिंग -1। अब इन दोनों टर्म्स में m-1 कॉमन है, पहले में भी और दूसरे में भी, इसको कॉमन ले लें m-1, सो रिमेनिंग टर्म इज am स्क्वायर और सेकेंड टर्म कौन सी रहेगी -1। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो पहली टर्म है 4a स्क्वायर, देखिए दूसरी जो साथ प्रोडक्ट में टर्म है वो स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, सो वी कैन राइट 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो वी राइट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ a स्क्वायर। अब 12 को ब्रेक कर लेते हैं इन फैक्टर्स, 12 इज अ फैक्टर ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 12 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3. So 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiply with a and b plus 9 is a square of 3. 3 multiplied by 3 9. फिर एक स्टेप में 3 multiplied by 3 राइट कर लें, फिर नेक्स्ट में इसको कंबाइन कर लें b स्क्वायर। सो दोनों टर्म्स का स्क्वायर कंबाइन कर लेंगे। एक्सपोनेंट रूल, जब दो टर्म्स प्रोडक्ट में हो और सेम पावर हो तो आप उनको कंबाइन कर लें, 2 टाइम्स a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, नाउ चेक द फर्स्ट टर्म इज 2a, सो 2 को a के साथ कंबाइन कर लें, 2 इंटू 2a। अब नेक्स्ट जो टर्म बन रही है दैट इज 3b, 3 को b से कंबाइन कर लिया। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दिस मीन्स 3 स्क्वायर एंड b स्क्वायर, सेम यही रूल अप्लाई करेंगे 3b होल स्क्वायर। नाउ चेक, अगर हमारे पास x और y दो टर्म्स हों, x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट टर्म 2a है जबकि सेकेंड टर्म 3b है। सो सेंटर वाली टर्म जो है वो हमारे पास इन दोनों के प्रोडक्ट में है। सो सेंटर वाली टर्म दोनों के प्रोडक्ट में है, सो इस फॉर्मूला को कंप्लीट करती है तो इसको कंबाइन कर लेंगे 2a प्लस 3b होल स्क्वायर। This is the required answer. So question number 9. The first term is x square. So middle term is minus p plus q factor x. So इसमें हम इसको x को मल्टीप्लाई कर देंगे, x is multiplied with p, नेगेटिव साइन है, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो दोनों के साथ अप्लाई होगा, p के साथ भी और q के साथ भी, माइनस q मल्टीप्लाइड विद x प्लस p मल्टीप्लाइड विद q। अब देखिए पहली टर्म में x स्क्वायर है जबकि दूसरी टर्म में माइनस पी एक्स है, मीन x स्क्वायर मीन x इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स x डॉट x माइनस p इज मल्टीप्लाइड विद x माइनस q इज मल्टीप्लाइड विद x एंड द सेकेंड टर्म इज p इज मल्टीप्लाइड विद q। अब इसमें देखें तो x कॉमन, पहली और दूसरी टर्म में x कॉमन है, x कॉमन ले लें, रिमेनिंग टर्म इज x एंड सेकेंड टर्म में रिमेनिंग टर्म माइनस p। इसी तरह से
थर्ड टर्म में माइनस क्यू कॉमन है, क्यू कॉमन है बेसिकली। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास p का साइन किस में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म का नेगेटिव में। तो x रिमेनिंग टर्म माइनस क्यू तो कॉमन हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म माइनस p। अब देखें दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है, x माइनस p, तो x माइनस p को कॉमन ले लेंगे। सो रिमेनिंग टर्म फर्स्ट में x, सेकंड में माइनस q। सो क्वेश्चन नंबर 10 सबसे इजी है। देखिए पहले टर्म्स में 3 अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a मल्टीप्लाइड विथ b, b मल्टीप्लाइड विथ c, जबकि सेकंड में a मल्टीप्लाइड विथ b है। दोनों में क्या कॉमन है, a b। पहले स्टेप में तो क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लें, माइनस c प्लस 1। अब देखिए पहले दोनों टर्म्स में a b कॉमन है, सो a b कॉमन ले लें, रिमेनिंग टर्म क्या रह जाएगी, c। अगर इसमें ये कॉमन रह जाएगा, चला जाएगा, तो इसकी जगह क्या रह जाएगा, माइनस 1। अब देखिए नेक्स्ट फैक्टर में क्या कॉमन लिया जाए। अब प्लस 1 है तो प्लस 1 किसके इक्वल होता है, माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ माइनस 1। सो अगर हम माइनस 1 कॉमन ले लें तो थर्ड टर्म में क्या बच जाएगा, c। और प्लस 1 है तो एक माइनस 1 कॉमन चला जाएगा, तो दूसरा माइनस 1 रह जाएगा। ठीक है, पहली टर्म में भी c माइनस 1 का फैक्टर है, दूसरी टर्म में भी c माइनस 1 का फैक्टर है, तो c माइनस 1 को कॉमन ले लें, c माइनस 1। सो रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी, a b पहली टर्म में और सेकंड में माइनस 1। सो क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट टर्म इज फैक्टर, दीज आर आर फैक्टर्स। फैक्टर्स हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। a प्लस बी का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है p प्लस क्यू प्लस आर। देखिए इस टर्म में पहला फैक्ट, सेकंड टर्म, इसी तरह यही वाला सेकंड फैक्टर, तीनों टर्म्स में कॉमन है। सो पहले क्वेश्चन स्टेप में तो क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट करें, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस b प्लस c इंटू p प्लस क्यू प्लस आर प्लस c प्लस a इंटू p प्लस क्यू प्लस आर। नेक्स्ट स्टेप में p प्लस क्यू प्लस आर जो सेकेंड टर्म है इसको कॉमन ले लें, सेकेंड फैक्टर को, p प्लस क्यू प्लस आर कॉमन ले लिया। अब इसके बाद पहली टर्म में कौन सी टर्म कॉमन, फैक्टर कॉमन रिमेनिंग है, a प्लस बी प्लस सेकेंड वाले में b प्लस सी प्लस थर्ड में c प्लस a। ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, a प्लस बी प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a। c अपीयर 2 टाइम्स तो कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, c प्लस c मीन c appeared 2 times, 1 plus 1, this mean 2c, p plus q plus r into a and a, it's mean 2a, b plus b 2b plus c 2c। अब देखिए सारी टर्म्स में 2 सब में आ रहा है, सो नेक्स्ट स्टेप में 2 को कॉमन ले लें, p प्लस क्यू 2 कॉमन ले लें, रिमेनिंग टर्म्स आर, पहले में a रह गया, दूसरी टर्म में b, थर्ड टर्म में c। सो नेक्स्ट स्टेप में 2 को बाहर लिख लें, 2 इंटू p प्लस क्यू प्लस आर इंटू a प्लस b प्लस c।